Dear students, today I will discuss with you a very common and important topic of English grammar, and the name of this lesson is about verbs. Now, first and foremost, let's learn about what is verb. Dear students, if you see, the word that is used to say something about a person or thing is called the verb. So when we say something about a person or thing or anything, that saying, that action is called to be the verb. I have already told you, discussed with you about the sentence, about the parts of sentence, about subject predicate, about object, about direct object, indirect object, about the parts of speeches, noun, pronouns, adjective, adverbs and all. So today we will discuss this topic in details. So if you see, dear students, the verb, the word is that is used always to say something. To say something about the person or thing is called to be the verb. Now, verb is very important. Verb is very important part of a sentence. So it is an important part of a sentence. Why it is important part of a sentence? क्योंकि इसको बिना verb के बिना sentence complete नहीं होता है. Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. इसलिए ये बहुत important part है. Okay, sentence में. Now there are various categories, various forms of verbs are there, and the basics I will teach you first. So first basic, if you talk about the being verbs, क्या है सर being verbs? About the be verbs actually क्या है? The verb that tells us what a person or thing is called to be being verbs. I repeat, the verb that tells us what a person is called to be being verbs. Example, the child was happy. Okay, so telling about how the child was actually. The child was actually is के बारे में बात. Child was happy. Ravi is a tall boy. If I don't write down here Ravi a tall boy, तो कंप्लीट नहीं होता है. इसलिए इसमें क्या चाहिए? verb चाहिए. अगर यहाँ पे हम लिख देते the child happy, इनकम्प्लीट सेंटेंस है ना, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट. इसलिए द चाइल्ड वाज हैप्पी. तो यहाँ पे ये लोग क्या है? वाज, इज, वेयर, वाज, ये सब क्या है? बीइंग वर्ब. बीइंग वर्ब क्या करते हैं ना? बीइंग वर्ब टेल्स अस व्हाट द पर्सन और थिंग इज. ओके, सेकंड में देखते हैं हैविंग वर्ब्स. हैविंग वर्ब्स दैट टेल्स अस what a person or thing has. Okay, ये person के पास क्या है और कोई भी चीज के पास क्या रहता है? has is said to be having verbs. Ronnie has a laptop. अगर यहाँ पे लिख देते Ronnie a laptop, समझ में नहीं आता है ना, तो हम लोग को लिखना है क्या है उसके पास? Ronnie has a laptop. नेक्स्ट एग्जांपल, रोमी हैज अ रेसिंग कार. ना यहाँ पे अगर हम भार नहीं लिखते रोमी आ रेसिंग कार, तो उल्टा मीनिंग हो जाता है. इसलिए भार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक सेंटेंस में. तो रोमी हैज ए रेसिंग कार. ओके, सो यहाँ पे देखो हैज, हैव, हैड, अगर इसको
रोमी हैड अ रेसिंग कार। ओके, सो ये सब क्या है, हैविंग वर्ब्स। ओके, नाउ थर्ड वन you see the doing verbs। doing verbs, now what is this doing verbs? The verb that tells us what a person or thing does। so ये जो क्या करता है, एक्शन के बारे में बात कर रहा है। एक्शन, कोई भी एक्शन जब हम लोग ना, आई जंप, आई रन, आई टॉक, सो ये सब क्या है, ये एक्शन। देखो, रीना राइट्स अ लेटर, तो रीना यहाँ पे क्या कर रहा है, लिख रहा है, ये भी काम है, लिखना भी एक काम है। तो रीना राइट्स अ लेटर, तो इसलिए ये है डूइंग वर्ब। रीना कुछ ना कुछ कर रहा है ना, इसलिए ये राइट है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है, राम ब्रोक द ग्लास। ग्लास ने कौन तोड़ा ना, राम। ब्रोक पास्ट फॉर्म ये है, और इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या है, ब्रेक। ओके, तो यहाँ पे देखो डूइंग वर्ब्स क्या है, राइट्स एंड ब्रोक्स, ये सब क्या है ना, डूइंग वर्ब्स। ओके, नाउ लेट्स कम इनटू द मेन कैटेगरी। है ना, verbs are divided into many different categories actually, but according to your standard we will learn about the transitive verb, intransitive verb and incomplete verb। तो पहले फर्स्ट कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं, जो ट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या है ट्रांजिटिव वर्ब ना, ट्रांजिटिव वर्ब that requires an object to complete its meaning is called to be the transitive verb। ट्रांजिटिव वर्ब को सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम वीडियो डाल दिया, उसको देख लेना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ओके, सो द वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। एग्जांपल दे लेते हैं। If I write down Roma wants, Roma wants, Roma wants, तो समझ में नहीं आ रहा उसको क्या चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग हो रहा है, ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे। रोमा ये क्या है, wants क्या है, wants इज एक्चुअली ट्रांजिटिव वर्ब और ये इनकम्प्लीट है, उसको क्या चाहिए, रोमा wants ए बुक, उसको एक किताब चाहिए। ये बुक क्या है, बुक ऑब्जेक्ट है, फुल स्टॉप। Roma wants a book, so here book is object। okay, इसलिए ये क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा एक तो ऑब्जेक्ट को लेते हैं। रोनी ड्राइव्स अ कार, अगर यहाँ पे लिखते हैं रोनी ड्राइव्स, तो इनकम्प्लीट हो जाता है, क्योंकि ये जो ड्राइव्स है ये है ट्रांजिटिव वर्ब, ये है ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए क्या चाहिए, हमेशा एक तो ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए, क्योंकि इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ओके, तो यहाँ पे देखो वांट्स एंड ड्राइव्स, ये क्या है ना, ट्रांजिटिव वर्ब्स का एग्जांपल है। ओके, सेकंड कैटेगरी में देख लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, सो ट्रांजिटिव वर्ब्स का जस्ट ऑपोजिट है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसा ट्रांजिटिव वर्ब्स में हम लोग देखे ना, या ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमेशा क्या चाहिए, नहीं एक तो ऑब्जेक्ट के चाहिए, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट को नहीं चाहिए। ठीक है, देखो द वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड टू बी द इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में हम लोग क्या देखे, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या बोल रहा है, नहीं एक तो ऑब्जेक्ट के चाहिए, वर्ब अकेला नहीं रह सकते, वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए। और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या देखे, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का कोई जरूरत ही नहीं है, वर्ब अकेला ही रहेगा। देखो क्या है, सब्जेक्ट के साथ रहेगा। द बॉयज प्ले, बस यहाँ पे प्ले इंट्रांजिटिव वर्ब्स। द बेबी क्राइड, तो बच्चा रो रहा था, तो क्राइड यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो यहाँ पे देखो प्ले एंड क्राइड ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब्स। उसके बाद भी तुम लोग का बुक में है इनकम्प्लीट वर्ब्स, मतलब और बहुत सारा चीज है। ओके, सो आई बेसिकली विल टेल यू डियर स्टूडेंट्स, you go through this page, go through this board, whatever notes are given, it's very good for the base, for the foundation of grammar। ये सब दिमाग में नहीं रहेगा तो ग्रामर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा।
और ग्रामर का सबसे बेस्ट पॉइंट यही सब है। तो ये नॉट ओनली फॉर क्लासेस, नॉट ओनली फॉर 1 ईयर और 2 ईयर, ये पूरा जिंदगी के लिए, पूरा लाइफ टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एसेंशियल है। डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू टू रीड द बुक, ओके, रीड द बुक and understand, learn, comprehend the lesson and stay tuned for more updates. Thank you.